Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and myself Assistant Professor Varsha Bharti. So today we will learn about mass communication from the subject Fundamentals of Mass Communication for class FYBA MMC. So let's begin with the topic communication. What is communication? The word communication is derived from the Latin noun that is communis and Latin verb communicare, which means to make common. Now what to make common? So the ideas, opinions that we share among selves is known as the communication process, in which we are sharing our opinions and ideas to another person. Now let us understand what is mass. Mass is nothing but the concept. Mass communication is defined as a large, heterogeneous, assorted and anonymous audience. मास हमारे लिए वो ऑडियंस होती है जो heterogeneous होती है, जैसे कि open to everything, who all are open to all ideas, who are accepting the ideas and opinions in public speaking. नेक्स्ट इज एनोनिमस, जिनको हम जानते नहीं हैं, जैसे कि हम लोग टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ एंकर्स हमको जानते हैं क्या? नहीं, हम उनके लिए एनोनिमस है, बट स्टिल दे आर डूइंग दिस मास कम्युनिकेशन, दे आर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ करंट अफेयर्स. Now, what is mass communication? Let us understand mass communication, the process of imparting and exchanging information through mass media to large segment of population. अब ये जो mass communication है ये large segment में होता है. The number of audience is large when we are conducting mass communication. Now, how are we doing the mass communication? Through print, broadcast, transit and digital media. Now these are four major types of mass communication through which we can communicate with the audience on mass level. These are certain points for mass communication. It is the extended form of interpersonal communication and where one individual communicates to a large group of people, and the message is sent to the general public or the group of heterogeneous and anonymous people. How can we do this? Via print media, social media, billboards, magazines, internet, film, radio and television. In simple words, mass communication is referred to as the exchange or imparting of message to many people at once. सभी लोगों को एक ही मैसेज एक साथ सबको वो मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है, जैसे कि हम लोग न्यूज़ में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, कोई स्पीच दे रहा है, कोई नोटिस बता रहा है, तो वो जो मैसेज है वो सभी को एक साथ मिल रहा है. एंड द वर्ड विच वॉज मेंशन्ड अर्लियर इज interpersonal communication. Interpersonal communication is a communication when it occurs between one or two people. जब भी एक दो से तीन लोगों के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, इंट्रापर्सनल इज खुद से बात करना, इंटरपर्सनल इज किसी और से बात करना. तो जब हम मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं. सो इट इज अ काइंड ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन विद अ लार्ज ग्रुप ऑफ ऑडियंस. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ मास कम्युनिकेशन? मास कम्युनिकेशन होता कैसे है? इट इज डन इन द पब्लिक स्पेसेस. नेक्स्ट, इट इज मीडिएटेड कम्युनिकेशन एक्ट. इसमें क्या होता है? गेट कीपिंग होता है. जैसे कि हम लोग न्यूज़ का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर न्यूज़ में कोई भी न्यूज़ एंकर हमसे न्यूज़ शेयर कर रहा है तो वो न्यूज़ रिलायबल है, क्रेडिबल है या नहीं, ट्रस्टवर्दी है या नहीं, फैक्चुअल है या नहीं, ये सारा प्रोसीजर पहले चेक किया जाता है, गेट कीपिंग की जाती है. देन ओनली वी आर अलाउड टू शेयर द न्यूज़ टू द पब्लिक. So this procedure is called, this filtering is called as gatekeeping. ये एक nature है of mass communication. And next is mass communication can alter the way the society thinks about events and attitudes. अब mass communication से हम लोगों के minds को influence कर सकते हैं और उनके mind को हम shape कर सकते हैं. Mass communication experience is transient. It means at once you used a message, for example a news report or a film, you may not use it again. अब जैसे कि कोई न्यूज़ है वो हमको मिल गई, वो हमने सुन ली, तो वो एक टाइप ऑफ ट्रांजिएंट मैसेज है जो हम एक ही बार यूज़ कर रहे हैं.
और नेक्स्ट इज मास कम्युनिकेशन इज मोस्ट ऑफन इट रिमेन्स वन वे कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्योंकि लार्ज लेवल ऑडियंस के साथ हो रहा है, तो जो पब्लिक स्पीकर होता है, लेट्स सपोज कोई सेमिनार चालू है, तो सेमिनार में हमारे जो प्रोफेसर होंगे या जो भी स्पीकर होगा वो पूरे ऑडियंस के साथ बात करेगा, तो ये मोस्टली वन वे कम्युनिकेशन होता है। ऑडियंस से स्पीकर बात करता है और स्पीकर जब जो चीज़ें सिखा रहा है, समझा रहा है, वो ऑडियंस सुनती है और समझती है। Unlike other communicators, mass communicators can't see their audience. For example, news, for example, films. अब जो भी फिल्म्स रिलीज होती है, हम थिएटर्स में देखने जाते हैं, क्या उनको पता होता है, क्या शाहरुख खान को पता है कि हम उनकी मूवी देखने जा रहे हैं, कौन? दे आर ऑल एनोनिमस फॉर देम, अनजान होते हैं हम उनके लिए, फिर भी कम्युनिकेटर्स अपना मैसेज शेयर करते हैं। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मास कम्युनिकेशन? हम लोग ये मास कम्युनिकेशन प्रोसेस क्यों करते हैं, हमें कैसे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? क्विकली ट्रांसमिटेड इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन है वो क्विकली वर्ल्ड वाइड लेवल पे स्प्रेड हो जाती है। मल्टीपल मीडियम, बहुत सारे मीडियम्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है टू शेयर आवर आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशंस। वाइड कवरेज, लाइक आई सेड, वर्ल्ड वाइड। अब जो यहाँ की न्यूज़ है वो पूरे ग्लोबल लेवल पे हम लोग शेयर कर सकते हैं यूजिंग मास कम्युनिकेशन। Contact with family and friends. Also, we can contact our family and friends using mass communication platforms. Process of extensive circulation of information. ये जो सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे बहुत सारे लोगों के साथ एक ही टाइम पे स्प्रेड की जा सकती है। इट एजुकेट्स अस। अब मास कम्युनिकेशन से हमको एजुकेशन भी मिल रहा है, इंफॉर्मेशन भी मिल रहा है, करंट अफेयर्स के लिए जानकारी मिल रही है। सो दिस इज एजुकेटिंग अस, राइट? keeping us updated. Inform market demand, rise and supply. If we are using media platforms, we will know what is the demand, what is the price, and at what level is the brand supplying the products, कितना उनका सेल्स हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमको मास कम्युनिकेशन के थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या न्यूज़ से हमको पता चलती है। डील्स विद द वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसमें काफ़ी तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हर तरीके का मास कम्युनिकेशन का एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है। सेमिनार का अलग होता है, न्यूज़ एंकरिंग का अलग होता है। सभी तरीके के मास कम्युनिकेशन के टाइप्स का अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होता है। हेल्प्स टू बिल्ड ओपिनियन अबाउट सराउंडिंग्स। नाउ व्हाट आर द सराउंडिंग्स, हमारे आजू बाजू में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे पता चलती है यूजिंग मास कम्युनिकेशन। जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। देयर वाज वन पॉइंट, कॉन्टैक्ट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, वी कैन यूज व्हाट्सएप ग्रुप्स। ये सारे तरीके मास कम्युनिकेशन में ही आते हैं। इट ब्रिंग्स बिफोर अस द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। अब जब न्यूज़ में हमारे पॉलिटिशियंस स्पीचेस देते हैं और न्यू पॉलिसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, सो दिस इज़ जस्ट अ वे they are letting us know what are their ideologies, what are their future insights for us, for the betterment of the society. So this is why mass communication is important for us. Now the next part is forms of communication. अब communication, not mass communication, communication कैसे कैसे किया जाता है? बेसिकली इसमें दो मेजर टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन, सेकेंड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्बल. We know about communication as either verbal or non-verbal. Verbal communication means communication that takes place through the usage of words. जैसे कि मैं अभी वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, किसी से बात कर रही हूँ, फेस टू फेस, इन पर्सन किसी से बात कर रही हूँ, और ऑन कॉल, ये सारी चीज़ें वर्बल कम्युनिकेशन में आती है. नेक्स्ट इज नॉन वर्बल. नाउ वी ऑल नो व्हाट इज नॉन वर्बल. नॉन वर्बल इज नथिंग बट जेस्चर्स, पोस्चर्स, द वे यू रिएक्ट. हम लोग एक्शन से किसी से बात कर रहे हैं, सिंबल से, साइन से, कुछ इमिटेट करके बता रहे हैं. दैट ऑल कम्स अंडर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन? फर्स्ट इज वॉइस, पिच एंड नोट. Whenever we are conducting verbal communication, we need to understand the voice. What should be our level of voice,
जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं तो ऊंची आवाज़ में, नीची आवाज़ में। अब जब हम छोटों से बात करते हैं तब हम बड़े प्यार से बात करते हैं, हमारा वॉइस बहुत ही सॉफ्ट होता है। बट जब हम किसी से नॉलेज शेयर कर रहे हैं या हम किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तब हमारा वॉइस थोड़ा लाउडर होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें बदलती है इन different different situations. Voice can communicate and evoke emotions such as joy, enthusiasm, displeasure, wonder, awe, determination, decisiveness and many more emotions. नेक्स्ट इज पिच। अब हमारा पिच कैसा है? जब हम लोग पिच की बात कर रहे हैं तो हम लोगों के पिच का मतलब है हम लोग किस तरीके से, किस लेवल पे हम लोग सामने वाले से बात कर रहे हैं। अब पिच में आ जाता है थोड़ा रूडली, थोड़ा चिढ़ के बात करना, उसका अलग पिच होता है। और जब हम किसी से प्यार से बात करते हैं, सॉफ्टली बात करते हैं, पोलाइटली बात करते हैं तो वो एक पिच अलग हो जाता है। Pitch is the vocal element that determines the accentuation and prominence of speech. Text tone, the volume, tone and inflection or modulation can create the desired impact of the message to be delivered. अब हमारा टोन कैसा है? रूड है, पोलाइट है, सॉफ्ट है, प्यारा है, या गुस्से में कोई बात कर रहा है, कोई गुस्से में रूडली बात करता है तो हम बोलते हैं ना कैसा टोन है इसका। पर जब कोई प्यार से बात करता है तो हम कितना हम्बल है, कितना डाउन टू अर्थ है, पोलाइट है। दिस ऑल कम्स अंडर वर्बल कम्युनिकेशन, voice, note and pitch. Next is non-verbal communication. The first is facial expressions. जब भी हम लोग किसी से facial expressions, we give a smile, that is nothing but a pleasant attitude. हमको गुस्सा आता है, हमारी आंखें छोटी हो जाती है, स्क्वीज हो जाती है, समझ में आता है सामने वाले को गुस्सा आ रहा है। जब हम लोग खुश होते हैं तब हमारा फेस पे हैप्पीनेस दिखती है। जब हम लोग नर्वस होते हैं तब हम लोग का थोड़ा फेशियल एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है, नर्वसनेस दिखती है। आई एक्सप्रेशन, नाउ आई एक्सप्रेशन इज ऑल्सो अंडर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम लोग नर्वस होते हैं, जब हम लोग अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, जब हम लोग झूठ बोलते हैं तब हम लोग आंखें चुराते हैं। वी अवॉइड मेकिंग आई कॉन्टैक्ट। बट जब हम लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, वी फील कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक टू पर्सन आई टू आई, then we do confident eye contact. Next is body language. Now whenever I'm talking about body language, we know this कि it can be subtle or it can be non subtle. कैसे? फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग क्लासरूम में बैठते हैं तब हम लोग डिसिप्लिन में बैठते हैं, हमारा बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज अलग होता है। बट जब हम लोग घर पे होते हैं तब हम बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, हमारा पोजीशन बहुत ही आराम वाला होता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन सटल नॉन सटल मूवमेंट्स, जैसे कि एग्जाम्पल दिया मैंने। सो इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सिचुएशन टू सिचुएशन व्हाट इज योर बॉडी लैंग्वेज। देन इज पॉस्चर। पॉस्चर जैसे कि हम लोग कैसे बैठ रहे हैं, हम लोग कैसे किसी से बात कर रहे हैं, व्हाट इज़ द फर्म हैंड शेक, ये सारी चीज़ें पॉस्चर्स में आती है। द वे वी कैरी आवर सेल्स कैन ऑल्सो सर्व एज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। द टर्म पॉस्चर रेफर्स टू हाउ वी होल्ड आवर बॉडीज as well as overall physical form of an individual. The way we sit, the way we talk, the way we walk, the way we carry ourselves, this all comes under posture. Next is touch. Now human touch is amongst the earliest forms of communication. It is one of the first things a child uses to learn to identify people. जब भी मैं टच की बात कर रही हूँ तो टच एक ऐसा जरिया है जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। जब बेबी छोटा होता है तब वो अपनी माँ के हाथ को, स्पर्श को समझ सकता है कि ये मेरी मॉम है, ये मेरे डैड है। एंड टच ऑल्सो इंक्लूड्स गुड टच, बैड टच, द कंफर्ट लेवल। Next is proxemics. Now what is proxemics? It is very easier. Term बहुत hard लग रहा है, क्या होगा proxemics? Proxemics is the space, how we use the space around us. फर्स्ट इज इंटीमेट और प्राइमरी टेरिटरी। अब ये जो टेरिटरी होती है वो 10 इंचेस के अंडर आती है और इसको पर्सनल एरिया बोला जाता है, जैसे कि आर होम, आर बेडरूम, आर स्टडी रूम एंड वेयर वी फील ऑलमोस्ट लाइक अ होम। नेक्स्ट इज कैजुअल, पर्सनल और सेकेंडरी टेरिटरी। अब ये जो
स्पेस है वो 18 इंचेस के अंदर आती है। एंड इसमें क्या क्या होता है, इसमें हमारा कॉलेज आ गया, हमारा फ्रेंड्स का घर आ गया, ये सब आते हैं हमारे कैजुअल पर्सनल में। नेक्स्ट इज सोशल, कंसल्टेटिव और पब्लिक टेरिटरी। इट कवर्स अ जोन ऑफ 4 to 12 feet फॉर फॉर्मल ट्रांजेक्शंस। लास्ट इज पब्लिक और interaction territory, mostly done while addressing group of people. So this is the diagram for proxemics. Like I said, intimate distance family and lover, personal distance friend आ गया, social distance stranger आ गया, and public distance में public strangers. Now let us understand further what are the different forms of communication. Fourth type is intrapersonal. Intrapersonal is a communication when we talk to ourselves, the way we talk to ourselves. For example, when we get up, we need to get ready for our college. We think हमको क्या पहनना है, मैं क्या पहनूँ, मैं इसके ऊपर कौन सा टॉप पहनूँ, what shoe should I pair with. ये सारी चीज़ें हमारी इंट्रापर्सनल होती है. when we think about our future, when we think about our goals and aims, this all comes under intrapersonal. Group communication is a communication where more than two individuals are sharing a common goal and understanding come together. हम लोग जब ग्रुप कम्युनिकेशन करते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी करते हैं, एक्वेंटेंसेस के साथ भी करते हैं. सैटेलाइट कम्युनिकेशन, दिस कैन बी डन एज द सबसेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वेयर सैटेलाइट ट्रांसमिशन इज यूज टू रीच द मासेस और लार्ज पब्लिक. अब हम लोग सैटेलाइट यूज करते हैं, नेटवर्क्स यूज करते हैं, उसी की वजह से हमारा इंटरनेट चलता है, हमारे कॉल्स कनेक्ट होते हैं, ये सारा आ जाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में. Last type is interactive and digital communication. A general understanding of digital communication is the electronic transmission of information that has been encoded digitally. For example, WhatsApp, Facebook, ये सारी चीज़ें आती है हमारी डिजिटल कम्युनिकेशन में. सो दिस इज इट चिल्ड्रन. टुडे वी लर्न व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट is mass communication, importance of communication and nature of communication. In the next video we will be learning further about it. Thank you.